Want to score full marks in computer science, but you are still confused about how the questions will appear and what choices you will be having in board exams? So no worries, I will quickly discuss the paper pattern of Computer Science 9th Punjab Board in today's video, which is brought to you by KIPS Virtual, your trusted partner in success. So students, actually the first question that arises in your mind is from where we are going to study the entire syllabus. So Punjab Board has provided you with the textbook from where you are going to study your syllabus. But for your better and smart revision, I recommend you KIPS publication series, which are expertly designed notes that ensure that you are always ahead. So students, over here now we are going to discuss the paper pattern of Computer Science Punjab Board 9th class, for which you will get the total time of 2 hours and it will be composing of total 50 marks. It means students कि आपने 2 hours में 50 marks का paper attempt करना होगा, which is actually divided into 2 main parts, and those parts are number 1 objective part and the other one is the subjective portion. Students, objective and subjective separate portions हैं and इनके अपने questions होंगे and as well as time होगा. If I talk about the objective portion first, तो objective portion 15 minutes का होगा, total time आपको 15 minutes given होंगे and आपने इसके questions को attempt करना होगा and all the questions in this part is MCQs based, multiple choice questions होंगे and there will be actually 10 questions in question number 1. Question number 1 के 10 parts होंगे and you have to attempt all 10 parts. हर question जो होगा वो definition based भी हो सकता है, नॉलेज बेस्ड भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लुकिंग अप टू व्हाट योर कंप्यूटर स्किल्स आर, आपने इनको फिल करना है. एमसीक्यूज के सारी स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली रीड करना है एंड राइट ऑप्शन को आपने फिल करना है. नाउ वेयर यू आर गोइंग टू फिल दीज एमसीक्यूज, एक्चुअली आपने फिल करना है ऑन द बबल शीट, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन शीट है वो आफ्टर अ टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स ले लिया जाएगा. सो व्हाट यू हैव फिल फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सारा आपने बबल शीट्स पे फिल करना है. Every part consists of 1 marks. जब हम इसको sum करेंगे, so it will be because 10 marks, so it will be containing the altogether the total marks of 10. तो objective portion जो कि हमने 15 minutes में complete करना है, वो 10 marks का होगा. It means you can get maximum 10 marks in the objective portion. The next, if I talk about the subjective part, तो subjective portion के लिए आपके पास time होगा 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes के लिए you have to attempt a total paper of 40 marks. जो subjective portion है वो 40 marks का है, जिसके अंदर आगे 2 further sections हैं, the part 1 and part 2. If I talk about the part 1 first, तो ये यहाँ पर short questions होते हैं. Short questions के भी आगे से 3 parts होते हैं, that are question number 2, question number 3 and 4, because question number 1 is already discussed in objective portion जो कि multiple choice questions थे. Now over here question number 2 में आपको 6 parts given होंगे, out of which you have to attempt only 4 parts. 2 parts की choices होंगी. Every part will consist of equal marks जो कि 2 marks का है. तो जब हम इसको add करेंगे तो question number 2 will consisting of 8 marks. इसी तरीके से question number 3 है, question number 3 में भी 6 parts होंगे, from which you have to attempt 4 parts और जो 2 parts हैं वो आपकी choice होंगे और ये भी 8 marks का ही होगा. And then in the last you will be having the last question of this part जो कि होगा question number 4. यहाँ पर भी 6 parts होंगे, you have to attempt any 4 parts और यहाँ पे भी 2 question की choices होंगी and ऐसे ही ये भी 8 marks का होता है. Now 8 plus 8 plus 8 which means कि आपने जब questions को attempt कर लिया from question number 2, question number 3 and question number 4, आपका part 1 subjective type का section का जो part 1 है short answer questions का, वो उसकी requirement fulfill हो जाएंगी and over here you will get the total marks of 24. आपके लिए it is preferred कि अगर तो time है तो आपने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है. इट इज बेटर फॉर यू. बट इफ यू डू नॉट हैव टाइम, आपके जो बेस्ट क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं आपने वही अटेम्प्ट करने हैं. नाउ ओवर हियर वन मोर थिंग कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट योर एग्जाम. जब आप एग्जाम दे रहे होंगे यू हैव टू गिव ऑन एवरेज ऑफ अ टाइम ऑफ 3 मिनट्स टू ईच पार्ट. हर क्वेश्चन के एक एक पार्ट में अगर आप 3 मिनट्स दे देते हैं दैट्स इनफ.
30 to 40 मिनट्स आपने सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 को देना है, जो कि सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बच जाए एंड एज वेल एज आप रिवाइज भी कर सकें अपने पेपर को. सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 सब्जेक्टिव पोर्शन. नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द सब्जेक्टिव पोर्शन, तो यहाँ पर होते हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑल टुगेदर जो टोटल मार्क्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दैट आर 16 मार्क्स. हाउ कि यहाँ पर होते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 7. 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. ईच क्वेश्चंस कंटेन 8 मार्क्स. तो जब आप 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे 8 + 8 विल बी 16. तो यहाँ पर आपके 16 मार्क्स पार्ट 2 के फिनिश हो जाएंगे. फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है रिस्पेक्टिवली एट योर सब्जेक्टिव पोर्शन, जब हम इसको ऑल टुगेदर ऐड करेंगे इट विल बी 24 + 16 = 40 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो जाएगा 10 मार्क्स का, जबकि सब्जेक्टिव हो जाएगा 40 मार्क्स का एंड यू कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 50 इन जो कंप्यूटर साइंस, अगर तो आप स्मार्टली रिवाइज करेंगे. एक मॉडल पेपर भी देख लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द पास्ट पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. तो ये कैसे आता है, दिस इज एक्चुअली कि अंडर कंसिडरेबल रखा जाता है ऑल काइंड ऑफ मीडियम स्टूडेंट्स को जो कि इंग्लिश या उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं. एक्चुअली होता क्या है, पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक होता है उर्दू लैंग्वेज में, दैट इज एक्चुअली अप्रोचिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जबकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश क्वेश्चंस गिवन होते हैं दैट आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट देयर पेपर इन उर्दू लैंग्वेज वो उर्दू क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं एंड दोज हु आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश दे कैन सी द क्वेश्चंस इन इंग्लिश. तो आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. दोनों मीडियम्स को मद्देनजर रखते हुए ये पेपर जो है वो डिजाइन किया गया है. सो पैरेलली जो क्वेश्चंस है वो उर्दू में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे एज वेल एज इंग्लिश में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे. नाउ इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट दैट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव पोर्शन. सबसे पहले तो हिदायत दी गई हैं, आपने इन हिदायत को बहुत केयरफुली रीड करना है. अगर आप ऑब्जेक्टिव को देखें ओवर हियर दे हैव गिवन फ्रॉम 1 to till MCQs. इट्स मीन कि आपके 10 पार्ट्स होंगे. हर पार्ट के लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगी A, B, C and D. So you have to select the right answer from the options. स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करना है और राइट आंसर्स को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे यू हैव टू फिल योर बबल शीट पैरेलली. या तो आप सारे क्वेश्चंस में एक ही दफ़ा रीड करके फिल कर लें, क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर्स को टिक कर लें एंड इन द एंड जो है वो आप बबल शीट को फिल कर दें. The next part is the subjective portion. Subjective portion जो है इसमें 2 parts होते हैं, the part 1 and the part 2. As you can see कि जो part 1 है उसमें total 3 parts further given है, like 3 questions that are question number 2, 3 and 4. हर question part में there are actually 1, 2, 3, 4, 5 and 6 parts और जिसमें से आपने करने होते हैं any 4 parts. तो question number 2 है, 3 है या 4 है, 6 parts given होंगे और हर part में से आपने 4 questions को attempt करना है और this is recommended and you have to actually prioritize those questions जो आपको best आते हों. Definition वाइज भी हो सकते हैं, नॉलेज बेस भी हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी हो सकते हैं, डायग्राम्स भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू ग्रैब द मैक्सिमम नंबर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द आंसर्स वेरी नाइसली. अगर हम पार्ट 2 की बात कर लें तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 होते हैं. 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स ईच पार्ट, जो कि टोटल होता है 16 मार्क्स. तो आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो हो जाएगा 40 मार्क्स का, जबकि ऑब्जेक्टिव है दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 10 मार्क्स. ऑल टुगेदर इट विल फॉर्म द टोटल 50 मार्क्स. होपफुली यू अंडरस्टैंड द होल पेपर पैटर्न कि आपके कैसे क्वेश्चंस अपीयर हो रहे होंगे बोर्ड पेपर में, कैसे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसी चॉइसेस आ रही होंगी. नो मोर कंफ्यूजन्स, नो मोर गेस वर्क, स्टार्ट वर्किंग स्मार्टली, बिकॉज अगर पढ़ना है आसान तो आगे बढ़ना है आसान.